एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्शन। Axis Bank is the third largest private sector bank in India. With a profit size of 2,85,628 crore rupees as on 31st March 2012, the bank offers the entire spectrum of financial services. Within 2 decades of its operations, Axis Bank boasts of an impressive footprint of thousands of domestic branches and tens of thousands of ATMs spread across the country, in addition to several overseas branches. Over the past several months, Cobra Post Associate Editor Syed Masroor Hassan visited dozens of Axis Bank branches over several states, and his encounters with officials of the bank establishes beyond doubt that Axis Bank is indulging in widespread money laundering with the connivance of the senior management of the bank. Axis Bank branches are indulging in gross violations of many aspects of the Income Tax Act, FEMA, RBI regulations, and Know Your Customer or KYC norms. You will see a series of evidence wherein the bank officials have confessed to having laundered several crores of rupees of black money. This investigation raises several questions about the legitimacy of the bank's deposits and also raises questions about its declared profits. The big question is, what percentage of the bank's profits, for instance, could be derived from illegitimate and cheap deposits? How much of this slimy money has been invested in the bank's insurance and other products? The undercover investigation had Hassan take the alias of Rajiv Sharma. He posed as a frontman for an imaginary politician who wants to launder his pile of ill-gotten cash. Occasionally, he even posed as a businessman. He also created characters like Vandana and Neeta, the imaginary minister's imaginary wives. Of course, no polygamy here. And importantly, Sharma ji never had any black money to invest in the first place. The encounters with Axis Bank officials had them suggest a host of methods to the reporter by which they were willing to help the politician launder his scam-tainted cash. They were willing to accept lakhs and crores of rupees in cash. Sometimes, even the mandatory PAN card would not be necessary. They were willing to invest the cash in long-term insurance products. They universally agreed to keep the identity of the politician a secret. They agreed not to report the transactions to the RBI and other authorities like the Income Tax Department. They agreed to open multiple accounts and close them at will to facilitate the investment of the client's black money and its subsequent withdrawal. They agreed to open dummy accounts. They agreed to allot lockers to the client for storing several crores of black money. They agreed to facilitate the transfer of this black money as remittance abroad through the bank's accounts and other nebulous means. They agreed to personally collect the black money from the client's premises. They offered to organize additional PAN cards to their clients to help them dodge the tax authorities. They offered to deposit the cash in sundry accounts which are meant exclusively for the bank's internal processes. They offered to organize the illegal cash to be sent out of the country through TCDC cards. They suggested setting up NGOs and show huge incoming amounts as donations. They offered to sell gold in exchange for the client's black money and with the advice that they can pledge the same gold for a loan from the bank. In almost all cases, the officials suggested opening multiple accounts in the bank to route the black money into long-term investment plans. Coming in handy are certain provisions such as Section 10(10)(d) under IRDA, which are being used by the bank's officials to render the maturity amount totally tax-free. Operation Red Spider cuts through the grim dark web of lies and deceit in dozens of branches of Axis Bank across the country. Spanning across the states of Rajasthan, Haryana, New Delhi, Uttar Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka, Cobra Post Associate Editor Syed Masroor Hassan investigates the modus operandi of laundering black money in this reputed bank. Dubious financial operations are insidiously engineered inside the unassuming facade of one of India's most trusted private banks, Axis Bank. A. Mishra is Deputy Manager in the Ashok Niketan branch of Axis Bank in New Delhi. He seems to be a banker with a sixth sense.
Just a few words from his client and he gets straight to the point. Mishra understands that main cheez white की है and suggests options to launder his client's money. अगर मान लीजिए हम 50 लाख डालते हैं तो उसको हमें कितने समय के लिए रोकना पड़ेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिलेगा और पूरा वाइट होता है हमारा पैसा। अच्छा, मेन चीज वाइट भी है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, 3-4 कॉन्सेप्ट हैं सर। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट है FDR में जाए तो FDR में आपको बहुत ज्यादा वाइट वाली सिचुएशन नहीं मिलेगी। जनरल ऑप्शन ये ना हमारा, क्योंकि मैक्स के टाइप के थ्रू टाइप है, तो कुछ आप मैक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस ऑप्शन तो सबसे बेस्ट है इंश्योरेंस में लॉन्ग टर्म में डाल देना। हाँ, उसमें देखिए 3 ऑप्शन होता है। एक तो मार्केट लिंक प्लान होती है, एक होता है वो आपको फिक्स जैसे लाइक FD की तरह 11% का रिटर्न देगा ओवर द पीरियड ऑफ 60 लाख रुपए दे दिए 6 साल में। 6 साल में आपने 60 लाख रुपए दे दिए तो 7 से लेकर 16 ईयर तक जो आपको टोटल पैसा मिलेगा वो आपको मिलेगा अप्रॉक्स 1.5 करोड़ के आसपास। यानी कि 60 हाँ, 1.5 के आसपास जो पैसा मिलेगा। तो और जो पैसा मिलेगा आपको, अगर आप लेना चाहें तो मंथली आप ले लीजिए। सारा चेक से राइट होगा पूरा 100% टैक्स फ्री। तो आप The deputy manager advises his client that FDRs will not serve his objective of converting his black money to white. Axis Bank has a tie-up with Max, so invest 60 lakh rupees in its insurance policy for 6 years and get back a happy white amount of 1.5 crore rupees. And not just the deputy manager, but the branch head will supervise the transaction. मैं आपको एक चीज बताऊँ, इसमें एक चीज और है, आप जैसे कहेंगे वो चीज ठीक है। एक चीज होता है कि एक तो मैं, दूसरा ब्रांच है, 2 लोगों को लूप में लेकर चलेंगे तो ज्यादा हो रहेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दवा फिनिश कराएंगे तो वो वेलकम बढ़ेगा। आपके यहाँ आप और सर उनकी वाइफ की बैटिंग तो मनोरंजन बहुत चलती है। हाँ। With such collaborative enterprise, it is easy to dodge the tax ministers. The banker tells his client that no one will challenge his income after the 7th year of investment. मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताया, जो पैसा आप देंगे 7th ईयर ऑनवर्ड्स आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और 16 साल मैच्योरिटी होती है। उसमें इनकम टैक्स का एक और रूल है, बड़ा मतलब इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि जो पैसा आप 7 साल देते हैं 8वें साल आपसे नहीं पूछा जाएगा। 100% कोई पूछेगा 70% इनकम टैक्स नहीं चाहिए। इसीलिए आपके लिए बेटर ऑप्शन ये कि आप एक साथ ही 10 साल बाद पैसा निकालें। 10 साल बाद निकाल लेंगे। मोटा नहीं, मंत्री को ये बता दूंगा कि आपने 1 करोड़ 80 लाख दिया एक्सिस बैंक को और आपको 3.5 करोड़ रुपए राइट होके मिली है 10 साल के बाद निकाल लीजिए, 8 साल के बाद निकाल लीजिए। बेसिकली ये क्या है ना, इंश्योरेंस प्लान नहीं है। मैं आपको बता दूं सिंपल कॉन्सेप्ट, ये मंथली इनकम प्लान है बेसिकली। तो इनकम प्लान में क्योंकि अगर मैक्स लगा है या प्रूडेंशियल लगा है मीन्स वो इंश्योरेंस पार्ट उसका होगा और लॉकिंग पीरियड अगर 3 ईयर एंड अबव होगा तो उसमें इंश्योरेंस हो गई। मेन बात तो ब्लैक प्रोवाइडर खत्म बात वो हमने कहीं कराएंगे तो टेंटल डी पूरा राइट होगा, आपको टेंटल हमें नहीं चाहिए। So this is the monthly income plan from Axis Bank. Invest your money in a long-term plan for 7 years with 16 years maturity period. An investment of 1.8 crore rupees will yield returns to the tune of 3.5 crore rupees. All your IT concerns will be taken care of after 7 years and you get back all your money completely laundered. Thanks to section 1010D. And if you have black money, Axis Bank is happy to give you a locker, the biggest one. दूसरा हमें ये बताइए, आपके वरुणा जी जो हेमंत जी की वाइफ, इनको लॉकर चाहिए फरवरी में जो 5-7 करोड़ आना है वो कैश का 500 के नोट आने सारे मंत्री ने जिससे डील किया उसको 500 के नोट में बोला कि 1000 के लेन देन में प्रॉब्लम जरूर है। वही चीज होती है। हाँ, तो वही चीज होती है। आपको तो पता ही सारी चीजें आप समझता है, तो हमें बड़ा लॉकर दीजिएगा, तो बड़े से बड़ा लॉकर दिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। और कोइंसिडेंट है, आज जो हमारा सबसे बड़ा एक लॉकर है वो खाली होता है। आज हो रहा है, आज नहीं हो रहा है, प्लीज उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, 4-5 दिन 10 दिन का खेल है। Bring all your dirty black money to Axis Bank and store it in its lockers. If you bring in 5 to 7 crore rupees in denominations of 500 rupee bills, the bank knows exactly what to do. Like the deputy manager says, हमारे यहाँ जो लॉकर्स होती हैं तो वही चीज होती है। And आज ये कोइंसिडेंट है कि हमारा सबसे बड़ा लॉकर है वो खाली हो रहा है। अकाउंट में जो पैसा आएगा तो उसमें फिर नंबर ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, नंबर ऑफ अकाउंट्स थोड़ा कैश आपके लिए इजी हो मैनेज करना। जैसे सीडी सर्विस करेंगे, सीडी यही करेंगे, जो भी अकाउंट से आप करेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे अकाउंट के थ्रू करेंगे इसको आप या डायरेक्ट करेंगे? कौन सा वाला? जो इन्वेस्टमेंट वाला
इन्वेस्टमेंट तो जैसे आप करें जो आपको सूट करे, जिसमें हम कंफर्टेबल हो, जो आपने ऑलरेडी किसी कस्टमर को पहले दिया हो कैश के में, जिसमें सेफ रहा होगा। देखिए कैश में तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप पहले साल जैसे कैश में करा भी देते हैं, तो दूसरे साल में ना अगर आपको पैसा देना है तो मंथली पे कर सकते हैं, जैसे कैश कहीं नहीं जाना, आपको सब कुछ यहीं से मिलेगा, आपको दोबारा कहीं नहीं जाना, आप एक बार मेरा नंबर सेव कर लीजिए। So people, please save this deputy manager's number. He is the one-stop shop for all your black money. Mishra tells his client to deposit his black money in multiple accounts in the bank. He volunteers. आपके लिए easy होगा manage करना. He further tells his client that he can even make monthly cash deposits from the second year onwards. With such friendly advice, indeed the black money traders need look no further. Your neighborhood Axis banker will give you endless options to convert your black money to white. इसमें ना सर और भी कुछ ऑप्शंस है, बताइए सर। जो भी बेस्ट होगा वो कर लेंगे। गोल्ड का भी एक ऑप्शन रखेंगे, हर ऑप्शन को गोल्ड भी कैश में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गोल्ड मार्केट से ज्यादा रेट में तो नहीं है आपके यहाँ पे? होता है, लेकिन गोल्ड में आपको दिक्कत होगी नहीं। अच्छा, वैसे वापस बैक होता है क्या? होता है, अच्छा वो होता है। अच्छा, यहाँ पे तो अगर आपको भी आइडिया तो सारे ज्वेलर है वो बहुत महंगी परचेज कर लेते हैं। अच्छा, हाँ वो बैंक का तो गारंटी नहीं, तो फिर उसमें कैटेगरी। हाँ तो फिर वही होता है, असल में जैसे 31,000 मार्केट का रेट है आज, तो हमारा रेट होगा 34। का डिफरेंस होगा, बता रहा हूँ आपको, लेकिन जब वैल्यू ज्यादा रहती है ना तो एड पार आ जाता है, तो वो चेक से पेमेंट कर देंगे। और भी अकाउंट होते हैं ना सर, किसके थ्रू कैसे रूट करना है सब देख लेंगे। तो आप हमारा पैसा भी दूसरे अकाउंट जो आप बता रहे हैं किसी और अकाउंट से उससे रूट करा देंगे, हम सेफ रहेंगे। दूसरे वाला ऑप्शन भी देख लेंगे। Diversified investments is the way to go to launder your illegal cash. Buy gold with your black money, and the Axis banker says that there are many dwellers who will easily purchase that gold, in return for which you will naturally be paid in white money. And then there are other nebulous methods which the banker says किसके through कैसे route करना है सब देख लेंगे. Axis bankers will only suggest to you tried and tested ways of laundering money. आपको तो आइडिया होगा, ऑलमोस्ट सारे वो है तो बिल्डर बैठते हैं, तो एंट्री घूमना तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, बुला देंगे घूम जाएगी वो इतना वो चीज नहीं है। अभी क्या हुआ है कि इनका एजुकेशनल प्लॉट सारी चीज देख के चलनी पड़ेगी, सेफ्टी। हाँ वही मेथड अपनाइएगा जो ऑलरेडी पहले किसी कस्टमर का सेफ रहा होगा, और ऐसा नहीं कि जिसको पॉलिसी आपने पहले बेची है ना उसका सेफ है 2-3 साल हो गए हैं, तो हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि 2-3 साल निकल गया, काफी साल हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बस काफी अच्छे नाम है, लेकिन चर्चा नहीं होनी चाहिए तो अच्छा है। ये कभी भी बिजनेस का रूल होता है। हाँ। Sure, the banker has learned the rules of his business. Just a passport and a photograph, and you are in business. Leave the rest to Axis Bank. पॉलिसी आप देंगे, इसमें मुझे डॉक्यूमेंट सब क्या देना पड़ेगा आप ये बताइए, कम से कम जिसमें मतलब इनकम टैक्स का कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे। इनकम टैक्स के लिए सर देखिए क्योंकि नाम चाहिए होगा, तो देखिए मैं अगर पैसा अपने वापस लूंगा तो आपको दूंगा वो ड्राइविंग कार्ड दिखाइए चीजें, क्योंकि आपके लिए तो फोटोग्राफ आईडी एड्रेस का काम करेगा। पासपोर्ट दे दूंगा, पासपोर्ट कहीं तो बनना देगा, पासपोर्ट तो सारी बात तो सॉल्व करेंगे। तो पासपोर्ट जो है नीति की वाइफ इंग्लैंड जाती आती हैं, तो ये कह रही थी कि उनको परिचित भी रहती है इंग्लैंड, तो ये कह रही थी कि जो पैसा मैं लॉकर में रखूंगी 5-7 करोड़ रुपए है कैश का जो रखूंगी, उसको उनको थोड़ा भी रूट करना है, 50-50 लाख 40-40 लाख हो जाएगा। एक और भी कॉन्सेप्ट होता है उसमें ट्रैवल कार्ड्स का कॉन्सेप्ट होता है, डीसी कार्ड्स बोलते हैं या आउटवर्ड रेमिटेंस होता है, तो देख लेंगे उसमें कोई इशू नहीं होगा। हाँ ये जाएगा भी लॉकर में आपके रहेगा थोड़ा, लेकिन एकदम नहीं, जल्दी मत कीजिएगा। नहीं कुछ देखिए लॉकर में रहे अकाउंट में रहे, अकाउंट में भी रख सकते हैं, अकाउंट में इतना कैसे रखेंगे 7 करोड़ रुपया, क्या पैन कार्ड के भी रख सकते हैं, तो आप किसी और अकाउंट से करेंगे आप कैसे करवाएंगे? फिर अकाउंट से भी कर सकते हैं। हाँ आप वो अकाउंट से भी कर सकते हैं, दूसरे के अकाउंट से भी कर सकते हैं, आप हमारा दूसरे के अकाउंट से कर दीजिएगा, जो चार्जेस है पे कर देना, ठीक है ना, जो भी आपके अकाउंट वगैरह हो। हमारे नहीं होता है सब वो कस्टमर के चार्जेस होते हैं, आपको साइड में रेट होती है फोन पे कर देना। हाँ ऐसे नहीं होंगे कि 6% 4% आउट वो नहीं होंगे, जो जेन्युइन होंगे, जो जेन्युइन होंगे वही वो देगा। उससे मोटा मान लो क्लेम कितने होगा, मोटा इतना वो देते हैं, आप मान लो 10 करोड़ मान लो। हाँ 10 करोड़ का भी मान के चलिए, जो रेट होता है वो होता है 6%, 4%, 3% का रेट होता है, लेकिन एक होता है ना कि मुझे 10 करोड़ आपको सेटल करना है, तो 5 लाख 10 लाख मैक्स। One photograph and a passport is all it takes to infuse
black money into the investment policies. A large amount of black money can also be stored in the lockers. Still more can be parked in the Axis Bank accounts without the PAN card. Exchange some of that black money for TCDC cards. These cards are like ATM cards that can be used to draw local currency from ATM machines in any country. And for crazy amounts of cash to be sent out of the country, the friendly bankers at Axis Bank will suggest you other options. An option that will cost you about 4 to 6% for the amount you wish to transfer. The Axis banker tells his client that he can help transfer 10 crore rupees overseas by paying a fee of about 10 lakh rupees. N. Chopra is assistant manager with Axis Bank in Kolkata. After describing the various investment plans available with the bank, where his client can multiply his 50 lakh rupees in the long term, he gets down to discuss the process with which his black money will be laundered. मैं क्या करूँगा, मैं सजेस्ट करूँगा आपको, आप 3 अकाउंट खोल लो, ठीक है? बेस्ट है 3 अकाउंट खोल के वहाँ से हम लोग करेंगे कि किसी को कोई नहीं है सर। आजकल 10 लाख रुपए क्या है, 10-15 लाख रुपए कुछ नहीं है। तो आपका टैक्स करोड़पति जो होते हैं उनको पकड़ेंगे कि आपको पकड़ेंगे? नहीं सर, ये पॉलिटिशियन है ना, इनके पीछे भी लोग हो सकते हैं ना, इनके अगेंस्ट वाले। पॉलिटिशियन के नाम पे कहाँ हो रहा है, उनकी वाइफ के नाम। पॉलिटिशियन की वाइफ का हस्बैंड ऑफ नहीं लिखना फॉर्म में, फिर आप वाइफ करके कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। The Axis banker suggests to his client to open 3 accounts in the bank through which the client can route his money into the investment plans. The IT guys have bigger fish to fry than go after 10-15 lakhs. But just to be doubly safe, the Axis banker can organize a second PAN card for his client. Yes, you heard that right. Listen into what the Axis banker can do for black money hoarders. सर मैं एक बार और एक चीज़ सजेस्ट करूँगा सर, अगर होता है तो एक पैन कार्ड ऐसे बना लो। मतलब बहुत कस्टमर यहाँ पे हैं 2 पैन कार्ड बना के रखे हुए, मतलब मैं तो मैं आप ही कराइएगा, मैं क्या करूँगा, वो सब आप ही करिएगा। दिस इज नॉट माय पार्ट, आई विल गिव यू ओनली कैश और ऑफ द बुक्स बोल रहा हूँ आपको। नहीं, जो भी मतलब सेफेस्ट हो, मैं ये नहीं जो ऑलरेडी मतलब पहले। हाँ सर, उसके लिए कुछ नहीं है आपका। मैं 3 नाम में करवाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टू स्टार्ट विद यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, जहाँ पे क्या करेंगे इन फ्यूचर आपके नाम पे हो सकता है कि पैन कार्ड नहीं लगी, पैन कार्ड के बिना वो करें। लेकिन ब्रांच मैनेजर और सीनियर्स को इन्वॉल्व करके उनको इन्फॉर्म करके ही सर, ऐसा नहीं जब ले रहे हैं तो हमारी सेफ्टी के लिए उनको इन्फॉर्म करके ही लूँगा। बहुत कस्टमर यहाँ पे हैं जो 2 पैन कार्ड बना के रखे हुए हैं। That is Axis Bank for you. Most of us, like you and me, with 1 PAN card can fret over our income tax. But Axis Bank will go the extra forbidden mile for those with crores of black money. Its bankers will organize an additional PAN card to soak in the illegal cash and mislead the taxman. Our banker admits that he will be doing it off the books, but he will get it done with help from his seniors. And the corrupt banking practices do not end with the PAN card scam. There are sundry accounts in the bank for money laundering. दूसरा, एक्सिस बैंक में अकाउंट हम यहाँ खोल देते हैं जो आप बता रहे हैं जी, उसके थ्रू रूट करें, सेफ रहेगा। आपने जो बताया कि अकाउंट खोल दीजिए, अकाउंट में डाल दीजिए। सर उसमें मैं कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि मैं क्या करूँगा, क्योंकि अगर अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा तो वो अकाउंट आप 6-7 महीना, 8 महीना, 10 महीना बाद क्लोज करके फिर एक नया अकाउंट खोल के वैसे करेंगे ताकि आँख में पड़े नहीं। आँख में तो पड़ेगा नहीं, लेकिन आप ऐसे कीजिए जैसे आपने पहले किसी कस्टमर करा, उसकी आँख में नहीं पड़ा, मेरी आँख में नहीं पड़ा, नहीं पड़ेगा सर। वो हमारा मामला है, हम देखेंगे कैसे सेफ रहेगा कस्टमर्स के लिए। ये मतलब अगर सैलरी अकाउंट में फेंक के वहाँ से हम लोग पे ऑर्डर करके निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड। वहाँ नहीं करके अकाउंट से रूट करके वो फायदा रहेगा कस्टमर के लिए, वैसे रूट करेंगे। आप बेस्ट कौन सा समझते हैं जो आपने अपनाया, बेस्ट कौन सा सेफ रहेगा? सर मैं समझता हूँ अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं अभी, क्योंकि 50 देखिए आप मुझे 10 लाख रुपये अभी देंगे कैश में, 10 लाख रुपये दिए, 10 लाख रुपये मुझे दिए, अकाउंट खुल गया और जो पड़ा हुआ है हम अपने संडे अकाउंट में फेंक के रखेंगे, संडे अकाउंट से उठा के फिर आपके अकाउंट में फंड कर देंगे, वहाँ से हम पे ऑर्डर निकालेंगे। संडे अकाउंट या संडे अकाउंट सर हमारा इंटरनल अकाउंट रहता है। इंटरनल अकाउंट मतलब जैसे सपोज जो
कोई सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हैं तो उनसे इनिशियल डिपॉजिट हमें कुछ लेना पड़ता है, कैश लिए, चेक लिए, तो वो अकाउंट में इनिशियली हम कस्टमर के मतलब कैश या चेक लेके उसके बिना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो कैश लेते हैं तो सन्ड्री अकाउंट में डाल के जब जैसे अकाउंट खुलता है तो कस्टमर का अकाउंट फाइल कर देते हैं। तो जी आप मुझे जो सेफेस्ट रहेगा सर, देखिए एक बार अकाउंट खुल जाएगा तो मतलब कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अकाउंट के थ्रू रूट करेंगे पहले, और इनके अगर फर्स्ट आपका ये वाला हो गया, जो फ्यूचर आएगा तो फिर हम देख लेंगे फिर कैसे क्या करना है। अगर होता है तो पैन कार्ड बना के मतलब वी कैन डू दैट। So, our super helpful banker tells his client that if his transactions still attract the tax authorities, he will close the account after 6 to 7 months. Indeed, that should engage the tax ministers in a game of perpetual hide and seek. Also, the bank has internal accounts called sundry accounts. These are internal to the bank where customer deposits are temporarily parked before actually being deposited in the customer's accounts. So, bank accounts are the safest mode of laundering black money. And for everything else, there is the second PAN card. The Axis banker says, अगर होता है तो PAN card बना के मतलब we can do that, उसमें कोई problem नहीं है. This begs the question, is it possible to open an NRI account for our minister's wife such that some of the illegal money can be routed overseas? बात है सर, अगर सपोज आपका यहाँ पे रेसिडेंट इंडियन अकाउंट है, सपोज जैसे आप मैम का बोल रहे हो रेसिडेंट इंडियन, तो एक स्टेटस, दो स्टेटस एक बैंक पे नहीं हो सकता है। सपोज रेसिडेंट इंडियन अकाउंट आपका मैम का खोले तो फिर हम सेविंग नहीं खुलेगा, तो एनआरआई अकाउंट नहीं। ओके, एक ही खुलेगा। रेसिडेंट इंडियन क्योंकि सर एक तरफ से फ्रॉड हो जा रहा है। अच्छा, ये वाला चेंज करना पड़ेगा, इसको एनआरओ अकाउंट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से खुलेगा। तो एक ही अकाउंट एक ही बैंक में खोलें, एनआरओ खोलें या एनआरआई खोलें, दोनों नहीं खोल सकते। वही मैं सजेस्ट करूँगा, ये वाला खोल सकते हैं। मैं वो मतलब अगर कोई मतलब नाम में कुछ ये रहे तो वो मैं करवा दूँगा। तो करा दीजिए आप एनआरओ में, क्योंकि पैसा उन्हें यहाँ से जॉर्डन निकालना है। अच्छा, एड्रेस प्रूफ है? एड्रेस प्रूफ मिल जाएगा, मैं बात करता हूँ, अगर वो देती हैं तो दोनों बात दे दीजिएगा सर, मैं करवा दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। Chopra tells us that an individual cannot have a resident as well as a non-resident account in the same bank. एक तरह से ये fraud हो जा रहा है. Really now? But then again he says, अगर कोई नाम में कुछ ये रहे तो वो मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. The Axis banker can convert a savings account to an NRO account. So the minister's wife can carry up to $1 lakh as a business traveler or up to $20,000 as a tourist. Of course, this is all illegal, as the banker admits. Off the hooks है कि आपको unauthorized डालूंगा. There seems to be no order to the insanity of the banking practices in Axis Bank. Here are the creative ways in which the bank can launder your black money. Create an additional PAN card and let the tax authorities go on a merry-go-round. Open new accounts to deposit your money and route it into investments. If it triggers an IT alarm, well, close those accounts. Create a sundry account for the client, which is actually an internal account strictly meant for the bank's use. Deposit the illegal money in the sundry accounts. This is the nebulous machinery at work inside Axis Bank to spin crores of rupees of black money. It's just another day in the Noida branch of Axis Bank. The Cobra Post undercover reporter makes a cold call at a busy hour in this branch and meets Ash Srivastava, Deputy Manager, Operations. A politician's black money needs to be converted to white. वाइट चाहते हैं? हाँ, वाइट चाहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, अराउंड 10 साल तक का। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेइंग टर्म हमारा 6 इयर्स है, वर्किंग पीरियड 3 साल है। अच्छा, 3 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं और पेइंग 6 ईयर। तो इसमें टीडीएस कहीं नहीं कटना। पक्का? 200%। कोई हिडन चार्जेस वगैरह कोई आपके? कोई हिडन चार्जेस नहीं है, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू ब्लैक और वाइट कन्वर्ट करने के लिए। One cold call and within minutes, the Axis banker provides a solution to help a client wash his filthy cash. Long-term investment is the way to go. No TDS and a 12% gains in addition to the laundered amount, says Srivastava,
कोई हिडन चार्जेस नहीं है एंड दिस इज द बेस्ट वे टू ब्लैक और व्हाइट सिंपल. शी देन डिस्क्राइब्स अ सिंपल मेथड. सिंपल गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगता है जो डेट सिक्योरिटीज होती है, वो गारंटीड इंटरेस्ट आपको 18% देती है. इसमें पीटीएस का कुछ नहीं करता. इनकम टैक्स का कहीं फिगर नहीं है. पैन नंबर मत दीजिएगा, पक्का पैन नंबर मत दीजिएगा, क्योंकि पैन नंबर से कई बार ट्रेस होता है. हाँ, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ट्रेसेबल हो जाता है. पैन नंबर मत दीजिएगा, डीएल दे दीजिएगा, पासपोर्ट पासपोर्ट दे सकते हैं, इलेक्शन कार्ड दे सकते हैं, कुछ भी कहीं का भी बना ऑल ओवर इंडिया सब चल जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस इज द बेस्ट वे. Indeed, it is a simple plan and executed with perfect ease. But what's simply shocking is the Axis banker advising a client, पैन नंबर मत दीजिएगा क्योंकि पैन नंबर से कई बार ट्रेस होता है. पासपोर्ट दे सकते हैं, इलेक्शन कार्ड दे सकते हैं, कुछ भी कहीं का भी बना हुआ सब चल जाएगा. अकाउंट खोल लीजिएगा. जैसे आप चाहें 3 अकाउंट हैं, 3 अकाउंट खोल दीजिए आप. खोल दीजिएगा, उसी समय हम आपको किट भी दे देंगे, चेकबुक दे देंगे, उसी समय हैंड टू हैंड एटीएम कार्ड दे देंगे, हैंड टू हैंड सब हो जाएगा. कैश डाल दीजिएगा, उसमें कैश तो बना देंगे. रूट हो जाएगा. कोई रूलिंग में आप कहीं से फिगर आउट नहीं होगा पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ लगा, कुछ नहीं. पैन नंबर ही सिर्फ एक चीज़ होती है जिससे ट्रेसेबल हो जाता है. सिक्योरिटी जो होती है वो चेक कर सकती है. इसलिए आप पैन नंबर मत दीजिए. बेस्ट है जी, बेस्ट है, बहुत बढ़िया जी. डीएल दे दीजिए, पैन भी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं. And coming up next is the Axis banker actively advising tax evading methods to her client. FDs will give low interest and will require the source of income, and mutual funds cannot happen without showing the PAN number. मत करिए, एफडी में बहुत जल्दी ट्रेस आउट हो जाता है. सबसे बड़ी बात है फिर आपसे पूछा जाएगा ये पैसा आया कहाँ से. वो प्रॉब्लम हो जाएगा हमको. तो एफडी में मत करिएगा. एफडी में एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलेगा आपको. बहुत ही इसमें सिर्फ एक